Year 2024 is going to end soon. So let's take a review what happened in 2024 and where it's going to take us in 2025, the real estate market. The expectation of an end user who has to give an exit to the investor. Yes. So it's all about the developer has to push Now the it is construction. because the developer has got a very, very good platform. So everything was on the paper, now it has to come up in the in shape, in reality, on ground. So now it is the time for developer. The investor has shown faith. The channel has shown faith. The end user has shown faith. So now it is on the developer's end to perform. If they will perform, the market will sustain. Definitely, yes, 2024 has been a great year for real estate of Gurgaon, and it was a win-win thing for everyone. So how it's going to take 2025 for real estate? Hello friends, welcome to the another episode of Truth Land Show with our real estate expert Mr. Ashish Thapar. Year 2024 is going to end soon. So let's take a review what happened in 2024 and where it's going to take us in 2025, the real estate market. Let's have a word with Mr. Ashish Thapar. Sir, just wanted to ask, how was the 2024 for the real estate market, especially for the developers, for the new launches, and how is going to take in 2025? So let's take a small recap of 2024. So I would say 2024 has been a fantastic year as far as the real estate of Gurgaon is concerned. There have been a lot of new successful new launches where the launches have oversubscribed. The premium in the new launches had come, and a lot of investors made money, like short-term gains were there, and the launches started at a certain price, and then as because of the demand of the product that the new developers were coming out with, I would say that the prices kept on increasing, starting from 17,000 rupees per square feet, going up till 23,000 rupees per square feet for the new launches. So a very, very good year for the developer, I would say, because the products got sold out, the money came into the bank account, the short-term investor made money. If he wanted to exit, he got an exit. The Because of the demand, I would say definitely the end user was there who was looking at a home delivery of 5 to 7 years or 8 years. So he was happy that he had to pay in a staggered payment plan. Yes, So definitely, yes, 2024 has been a great year for real estate of Gurgaon, and it was a win-win thing for everyone. I would say. so everyone have made money, Everyone the has- developers, the investors, the short-term investors. Great. So what do you think, sir, where 2025 will take the real estate, specifically in Gurgaon? Because Gurgaon has always been in a, it's the priority for all the investors and specifically for the new launches. Yeah. So how it's going to take 2025 for real estate? Well, I would say the trend will continue because I would say that the infrastructure is very supportive now for Gurgaon. The infrastructure is in place. Sona will go higher and higher only because now people have actually started living on Sona side. Yeah. Right. Dwarka Expressway, yes, a lot of new launches have come. Now it is on the developers end to do the constructions. How fast he can How develop. fast they do the constructions to keep the sentiment alive. If the constructions of the product will not reciprocate with the, I would say, with the end users or with the persons who have invested their money, then yes, there will be again a situation where there will be, the investors would love to take an exit, and they will not get an exit because the construction of the product will not match the expectation of an end user who has to give an exit to the investor. Yes. So it's all about the developer has to push the Now it is construction. because the developer has got a very, very good platform. So everything was on the paper, now it has to come up in the in shape, in reality, on ground. True. So that is how the things will. This will decide that where the market will go. True. So now it is the time for developer. The investor has shown faith. The channel has shown faith. The end user has shown faith. So now it is on the developer's end to perform. If they will perform, the market will sustain.
So what about the new launches that people are looking for 2025? I think one of the best developers they are forcing, but I think finger crossed everyone is still testing the water कि इतनी already deliveries pending है, बहुत सारे launches last year हुए हैं और 2025 में वो जो supply और add होगी, will that kind of a demand is still there और developer का एक charm होगा कि हाँ मैं मार्केट चल रही है तो मैं उस चीज को और मार्केट को पेनिट्रेट करूं और इस मार्केट का एडवांटेज उठाऊं, तो क्या डेवलपर लेके जाएगा 2025 को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर फॉर देम? आई वुड से जो 2024 में हुआ वो 2025 में मुश्किल है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड मनी ऑलरेडी. लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड मनी ऑलरेडी. एंड अगर वही बात है जो मैंने अभी पहले बोली, अगर तुमको एग्जिट मिलती रही तो रीइन्वेस्टमेंट होती रहेगी मार्केट में, और जो नए लॉन्चेस भी आएंगे वो भी सक्सेसफुली एट गुड प्राइस, एट अ वेरी गुड प्राइस सेल होती रहेगी. ओके. और बिकॉज प्रोडक्ट को दो तरह से चलता है. प्रोडक्ट एक इन्वेस्टर बेस चलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. तीन तरह से चलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड एंड यूजर. तो अगर ये तीनों, एंड यूजर ने तो बेचना ही नहीं. एंड यूजर ने अपना प्रोडक्ट पसंद कर लिया, अपना ब्रांड पसंद कर लिया और ले लिया, तो उसने बेचना नहीं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैठ जाता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहता है कि यार मैंने अपार्टमेंट ये खरीद लिए तो ठीक है, तो एक वो फिजल आउट हो जाता है आपके वहां से. एंड यूजर भी फिजल आउट हो गया नए प्रोडक्ट के लिए, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो भी फिजल आउट हो गया. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, अब अगर उसको रिटर्न्स क्विक नहीं मिली, जैसे कंस्ट्रक्शंस नहीं हुई, तो डेफिनेटली यस मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. बिकॉज आपको नए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि भी सब ने, मतलब अगर 20,000 घर हुए तो सिर्फ 20,000 इन्वेस्टर ही हैं. इन्वेस्टर्स बढ़ते रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट को समझते हैं. एंड यूजर्स, मतलब एक सर्टन गुड़गांव में डेफिनेटली चीज है कि भी इतने ही कंज्यूम अगर होने के लिए थे, अगर वो कंजम्पशन हो चुकी है तो नए लॉन्चेस डेफिनेटली स्लो होंगे. सो डेवलपर विल बी वेरी कॉशियस while launching the product, looking, भाई किसी ने यार उसने तो 22,000 रुपए में बेच दिया, and I have a better brand or I have a better location, so I also should do at 25,000 rupees. So he has to test the waters to see कि भी अब मार्केट में क्या वो ट्रैक्शन है, क्या वो उसको वो मिलेगी 2025 में. So definitely changes तो आएंगे. And always investors blue white product plots. So a lot of clarity has come कि हाँ 4 फ्लोर बन सकते हैं, 12 मीटर पे आ सकते हैं. NOCs का एक चैलेंज है ही कि एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में जहाँ पे उनको अपने नेबर से NOC लेना है टू कंस्ट्रक्ट 4 फ्लोर्स. सो हाउ डू यू सी दिस मार्केट? मतलब ये नए सेक्टर के लिए बेनिफिट है, पुराने को धक्का लगेगा इस चीज से कि नहीं? ये इट इज अ वाइज डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि हमें 4 फ्लोर सर्टेन एरिया में डेवलप करने चाहिए, और जहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो पुराने डेवलपमेंट्स थे तो जो 2000 में डिलीवर हुए हैं, जहाँ पे 9 मीटर की सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, तो वहाँ पे हम नया 4 फ्लोर नहीं आ सकते. तो जो नए सेक्टर्स हैं और जो 12 मीटर वाले रोड है, तो हाउ डू यू सी दैट मार्केट, प्लॉट मार्केट, हाउ इट विल टेक अस इन 2025? हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉटेड में हमारे पास 3 तरह की चॉइसेस आ जाती है. एक है डेवलप्ड, जो पुराने लाइसेंसेस है, डेवलप्ड हैं सारे, तो उसमें एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 9 मीटर की सड़कें हैं, 10 मीटर की सड़कें हैं. तो वहां पर तो गवर्नमेंट ने बड़ा सही बोल दिया, एंड दे आर राइट. कुछ कार पार्किंग जगह ले लेती है आपके घरों के बाहर, और सड़क प्रैक्टिकली 6 मीटर की बच रही है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ही नहीं करता. सो वेरी वेरी वाइज डिसीजन बाय द गवर्नमेंट कि वहां पर हमको नहीं बनाना. भाई ड्वेलिंग यूनिट जो रहेंगे वो 3 रहेंगे. अब अगर रियल एस्टेट को ग्रोथ वर्टिकली मिल रही है अपार्टमेंट्स में, तो फ्लोर्स में मिलनी चाहिए. तो उन्होंने देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव है, चाहे वो पुराने सेक्टर्स हैं चाहे वो नए सेक्टर्स हैं, अगर वहां पे 12 मीटर प्लस रोड्स हैं, अगर नॉर्मल टाउनशिप्स हैं, तो वहां पे उन्होंने ड्वेलिंग यूनिट 4 कर दिए. प्रोवाइडेड NOC आपको नए सेक्टर्स में भी चाहिए, आपको नए सेक्टर्स में भी चाहिए और आपको पुराने सेक्टर्स में भी चाहिए, आपके नेबर से NOC आपको चाहिए. ओके. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वाइज थिंग. भी अगर नेबर को बेनिफिट मिलेगा, इसको भी बेनिफिट मिलेगा, तो वो काम करेंगे. जो नए सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी कम है, बिकॉज हर आदमी ने वहां पर नई चीजें बननी है, तो वहां पर NOCs आसानी से मिल जाएगी. माइंडसेट वही होगा सबका. ओके. एंड पुराने सेक्टर्स में जो अगर पुराने लोग रह रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव है, मैं तो कहता हूँ दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन जो होना चाहिए.
दीनदयाल में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो लाइसेंस की डेंसिटी इज हायर देन 17, तो वहां पर आपको स्टेट +4 मिलना है, 4 चाहे वो 9 मीटर की सड़कें ओके। दीनदयाल की। सो वहाँ पे भी ये चैलेंज है एनओसी का? हाँ, एनओसी आप आपको हर सेक्टर्स में लेना है? एब्सोल्युटली आपको नेबर से लेना ही लेना है। ओके। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ रेजिडेंशियल पिछले 2-2.5 सालों में बहुत अच्छा रहा है फॉर एवरीवन, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन रियल एस्टेट सेक्टर्स, एवरीबॉडी मेड मनी। Yeah. कमर्शियल ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड, और वो तरीके से ग्रोथ नहीं आई Hmm. जो ग्रोथ आनी चाहिए थी। सो वेयर डू यू सी कमर्शियल गोइंग टू टेक अप, स्पेशली इन न्यू सेक्टर्स? सी कमर्शियल में फिर अगर हम चॉइसेस देखें प्रोडक्ट्स की, तो वो मतलब अच्छी चॉइसेस हैं। असल में हुआ क्या कि भी बहुत लोगों ने नेबरहुड मार्केट्स बनाई, तो वो जो नेबरहुड मार्केट्स बनाई, वो जहाँ पर नेबरहुड नहीं है वहां बना दी, तो फिर वो सेंटिमेंट खराब होना था। ओके। बिकॉज जहाँ नेबरहुड नहीं है, आया ही नहीं है, और वहां पर अभी नेबरहुड आने के लिए 10 साल है, 8 साल है, और मार्केट एक तैयार हो गया। इन्वेस्टर की डिलीवरी हो चुकी है, ओके। तो उसको बेचारे को बहुत पेन है कि भाई मेरे को मेंटेनेंस देनी पड़ रही है, मेरे अप्रिसिएशन नहीं आई। अप्रिसिएशन रेंट तब आउट, आएगी जब रेंट आएगा, रेंट आउट नहीं हो रही। तो वो रेंट आउट नहीं हो रही है, तो वो इसलिए पेन रही, बिकॉज चॉइस जो है वो गलत हो गई ओके। सर्टेन इन्वेस्टर्स की। ओके। तो कमर्शियल गलत नहीं है, बट कमर्शियल की अगर जिन लोगों ने चॉइस गलत कर दी, तो उनके लिए पेन हो गई। नया प्रोडक्ट आ गया जिसको हम एसईओ कहते हैं, जहां पर एसईओ की अभी डिमांड नहीं है, अभी हमको पता अभी मार्केट इवॉल्व होनी है, और वहां जाके अगर उसने आज इन्वेस्ट कर दिया और उसको उसकी पता ही है कि भी यार अभी तो 10 साल लगेंगे, और उसमें पेशेंस नहीं है उस कैपिटलाइजेशन को बिल्कुल। देखने की या उसको ऑपरेशनल एंगल से देखने की, तो वो भी बोलेगा यार ये खराब हो गया। अच्छा। सो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां पर हमको ये देखना है कि भी हम जैसे लोगों को गाइड करना चाहिए कि भी यार एसईओ लेना है, यहाँ पर ये लेना है, क्यों चलेगा, इसलिए चलेगा, पॉपुलेशन भी है, फुटफॉल अप्रोच है। भी है, फुटफॉल भी होगी, एंड यहाँ पर अभी टाइम लगेगा। आपको इन्वेस्टर को उस ढंग से गाइड करना है। नेबरहुड मार्केट लेता है तो नेबरहुड मार्केट में उसको वैसे गाइड करना भी, नेबरहुड है, अगर ये प्रोडक्ट को बनने में 4 साल लगेगा, तो ये देखो ये नई लॉन्चेस हैं, ये भी 5 साल में खड़े हो जाएंगे, या प्रेजेंट नेबरहुड है। डिमांड उस जगह, उस लोकेशन में, उस कमर्शियल की होगी, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड। कमर्शियल से बेटर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टर के लिए मैं देखता हूँ जी, जो प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, जो इन्वेस्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जो दुकान, एक दुकान से हम कई मकान बना सकते हैं, दुकान इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। चॉइस शुड बी राइट। ओके, चॉइस शुड बी राइट। उसके बाद थर्डली मैं आ जाता हूँ लैंड। अगर जिसके पास स्पैन थोड़ा ज्यादा है और वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वेरी वेरी गुड। भाई थोड़ा सा सबर्ब्स में जाओ, आप लैंड में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे हॉलीडे होम्स, बहुत अच्छी चीजें हैं, लैंड में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो इन्वेस्टर्स के लिए चॉइस बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि भी उसके पास पैसे कितने हैं, उस पैसे के साथ मतलब वो कहाँ पर क्या उसकी वो क्या करना चाहता है उस पैसे के, हम लोग उसको फिर गाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कमर्शियल बुरा है, लैंड अच्छी है, लैंड बुरी है, कमर्शियल अच्छा है, ऐसा हर इन्वेस्टमेंट का अपना डायनामिक्स है, मैच करने चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ। सो काफी टाइम से, स्पेशली कोविड के बाद से, फार्म हाउसेज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज रिचेस्ट चॉइस। बट एब्सोल्युटली अब क्या है, हर आदमी को समझ में आ गया कि उस टाइम में उसने वो अपने आप के साथ इतना रहा, इतना समय खुद के साथ उसने बताया कोविड के टाइम पे, तो देयर इज लॉट ऑफ डिमांड। मतलब जो आज की डेट में हम नौगांव साइड, जयपुर हाईवे साइड एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सो वेयर डू यू सी दैट दैट प्रोडक्ट विल गो एंड this farmhouse concept as an investor or as an end user, where the better market and where people will make better money as an investor perspective? सी अगेन हो क्या रहा है कि भी गुड़गांव में अपार्टमेंट्स बहुत महंगी हो गई, एवरेज प्राइस 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गया। सो यहाँ पर मतलब 4,000 फुट का अपार्टमेंट जो है वो 8 करोड़ रुपए का है, ठीक है, जो पहले 4 करोड़ रुपए में आ जाता है। बिल्कुल। अब जो जैसे लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे जो जो दिल्ली है, वहां पर घरों में रहते थे तो वो अपने फार्म हाउसेस खरीदते थे बाहर जाके। अब सेम ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होना है और हो रहा है। तो हर आदमी यहाँ पर कोई 3 करोड़ के घर में रह रहा है, तो उसको आज रिट्रीट होम चाहिए, नया नाम है कि भी वेलनेस होम, मिनी फार्म हाउस और प्रॉपर फार्म हाउस। हमारे पास गुड़गांव इज ब्लेस्ड विद अरावलीज। अगर पास में जाते हैं गुड़गांव, राजस्थान शेयर्स दैट बॉर्डर, तो वो जाते हैं तो वो जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। तो गुड़गांव वालों को या दिल्ली वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है शिमला की तरफ, भाई 6 घंटे ट्रैवल करें और जाएं वहां पर। तो वो जो उनको फील चाहिए, वो जो उनको पोल्यूशन फ्री एटमोसफेयर चाहिए, इको फ्रेंडली चीजें चाहिए,
तो वो उनके पास डिपेंडिंग अगेन अपॉन द क्वांटम ऑफ मनी, तो बहुत अच्छी ऑप्शंस है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, Infrastructure, मुंबई हाँ। फ्रेट कॉरिडोर बन एक गया, घंटे में आप पहुंच एनएच8 सकते और हैं बनेगा, आप गोल्फ कोर्स रोड से 1 घंटे पे अपने फार्म हाउस में। फार्म हाउस पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल। बजट स्टार्ट हो जाएगा, आप समझो 1.5 करोड़ रुपए से लेके वो 8-9 करोड़ रुपए तक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप गुड़गांव के कितने पास हो। पास हो, ओके। आप ग्रैंड भारत की तरफ जा रहे हो, वहां पर आपको 7-8 करोड़ रुपए में मिल जाएगा फार्म हाउस। आप नौगांव जो आपने बोला वहां जा रहे हो, आपको 1.5 करोड़ रुपए बीघा में मिल जाएगा फार्म हाउस। आप उसके आगे जाओगे, आपको 1 करोड़ रुपए बीघा में मिल जाएगा एंड फार्म व्हाट हाउस। अबाउट द सेफ्टी एंड दिस कंसर्न, मतलब उस एरिया में, क्योंकि आज दूर है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम फार्म हाउसेस बना रहे हैं, सो लोगों के माइंडसेट होता है, मैंने 4-5 लोगों से डिस्कस किया तो हमेशा उनका ये क्वेश्चन था, इज इट सेफ टू ट्रैवल दैट लॉन्ग, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रिलियंट, तो ट्रैवल इज नॉट एन इशू भाई, क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं, चलती तो वो हुई है रोड्स ही है। नहीं। और गांव है, गांव में वैसी सेफ्टी है, जो मैंने अभी बोला, पोल्यूशन है नहीं। सिर्फ आपको ये देखना है कि भी जो डेवलपर के साथ आप लगा रहे हो उसका क्रेडेंशियल क्या है, वो मतलब वो डिलीवरी दे, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर बड़ा नहीं है वहां, जो वहां पर फार्म हाउसेस की तरह सोच रहा है या इस तरफ सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत देखने वाली, बस स्टडी करने वाली चीज होती है। बाकी आप लैंड खरीद रहे हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना रहा है, उसका विजन क्या है, सो दैट इज एवरीथिंग। पेपर वर्क आपका सही होना चाहिए, फिर वही कंसल्टेंट को अगर आप सही हायर करोगे तो आपको सही कंसल्टेंसी देगा। Okay. So thank you so much, Ashish ji, always for your insight, and thank you everyone for watching us. We'll come again with our next episode, and we'll share about the real estate insight. We hope 2025 will be a wonderful year for everyone, and especially real estate where we belong to. Thank you so much. Thank you.